Yes or no? Hello everyone. All of you are here. 50% student. Yes. Oh. In the first part, it is given that actually in the question it is given that for a Hindi question number 16. This is exercise 13.2. Exercise 13.2. Question number 16. This is also very good question in point of board exam point of view. So PA is given 60 by 100, PB is given 40 by 100. We had P intersection B is also given 20 by 100. You have to determine neither A means A bar nor B मतलब B bar intersection के साथ, that you can write neither A nor B as A union B bar using De Morgan law of 11th class. Then you can write it using the negation of the event 1 minus PA union B, and it is the formula of using addition theorem on probability PA plus PB minus P intersection B. But because of this negative, it will become negative, it is positive. All the values are given. After solving, you will get 1 by 5. And in the second case, it is asked if she reads Hindi newspaper. It is known that she reads Hindi newspaper, and we are taking A is Hindi and B is English. We are not writing this time, or I am not writing this time. Let E as the event of, because in the 5 to 6 question I already explained how to write the steps. So now I am directly doing this, not writing the steps, that you can understand. E equal to A equal to B equal to event कैसे लेते हैं हम. तो बी मतलब क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बी बाई ए फाइंड करना है. पी इंटरसेक्शन बी गिवन है 20 by 100 और पी ए इज ऑल्सो गिवन 60 by 100. 100 कट हो जाएगा, 1/3 आंसर आएगा इसका. ठीक है, 1/3. एंड द सी पार्ट में क्या पूछा है, देखो सी पार्ट, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब इसका अपोजिट हो गया वो. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर? इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने पास क्या है, बी, वो हो चुका है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं. और हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी करनी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, it is given 20 by 100 upon PB is 100 cut 20 40 1/2 answer. So these are the three parts of this question, A, B and C. Take the screenshot. This was the good question, इसलिए मैंने solve किया इसको. Now this is Bayes theorem. Bayes theorem next. Very important. As I told you just now that in the past 12-13 years, every year question based on the Bayes theorem was there, and it was of 6 marks. So this past experience suggests me to share with you that this year also may become, because probability of getting this question in board exam is 99% of past year experience, but there is a probability of this question of probability may come in exam. I'm not saying 100%, no one can say na, because we don't know in question paper, we don't know question paper. तो आपको इसको क्वेश्चन के बायस थ्योरम के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है, जितने भी एक्सरसाइज में दे रखे हैं और मिसलेनियस में और एग्जांपल में है. थ्योरी में इसकी समझा रहा हूँ. बायस थ्योरम एक स्टेटमेंट है जो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनडायरेक्टली, जैसे बॉल इधर से निकाल के दूसरे बैग में डाली, फिर उसमें से बॉल निकाली, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. एक की प्रोबेबिलिटी होना दूसरे पे डिपेंड करती है डिपेंडेंट इवेंट्स में. ऑल दीज आर यूजिंग इन टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो उसका यूज करके उसने एक थ्योरम बनाई है जिसका प्रूफ हमें नहीं करना है, उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर एक सैंपल स्पेस है किसी ट्रायल का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ये सैंपल स्पेस है, एस इज द सैंपल स्पेस, एनी इवेंट, एनी सैंपल स्पेस ट्रायल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इससे एसोसिएटेड आपके पास कुछ इवेंट्स हैं E1, और वो इवेंट्स ऐसी हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, EN, एन इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ये वर्ड्स ध्यान रखना. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इनमें आपस में किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है. जैसे डाई को फेंकने पे 1 2 3 4 5 6,
तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, बट एग्जॉस्टिव वर्ड यूज कर दिया मतलब तीनों मिलकर क्या बनाएंगी, 1 2 3 4 5 6 तीनों इवेंट्स को अगर मिला दें मतलब यूनियन कर दें तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो जो सैंपल स्पेस बना देती हैं सभी इवेंट्स मिलकर और साथ में आपस में किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनके लिए एक वर्ड होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव यूनिट्स इवेंट्स दे रखे हैं एस एक सैंपल स्पेस है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर एक इवेंट ए और है जो इन सब में से किसी के भी साथ में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रखती है, मतलब कॉमन फेवरेबल केसेस रखती है, इसलिए एक ए ऐसा बनाया जो सबके साथ में कुछ ना कुछ कॉमन है। जितनी भी इवेंट्स है एक इवेंट ए ऐसी है जो कॉमन है सबके साथ में। तो इस इवेंट ए जो कि हमें गिवन है और E1 E2 E3 भी गिवन है, तो बायस ने एक रिजल्ट बनाया कि इसमें से अगर आपको कोई इवेंट PEI के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमेशा ध्यान रखना बायस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टूडेंट एग्जाम के अंदर या प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ये समझ में नहीं पाता है कि इसमें E1 E2 E3 कौन सी है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी हैं और ए इवेंट कौन सी जो कॉमन है, ये कंफ्यूजन होता है। तो मैंने एक इसका रास्ता ये निकाला है मेरे हिसाब से कि जो इवेंट हमको फाइंड करनी है, क्वेश्चन को देख के भी समझ में आएगा, वैसे तो बहुत ध्यान से समझना चाहिए बेसिक के हिसाब से, पर सम टाइम नहीं आता है, तो कि जो हमें फाइंड करना है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसके लंबे लंबे, जो फाइंड करना होता है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है। तो उससे रिलेटेड जो उसके अपोजिशन में है वो सब E1 E2 E3 का काम कर देगी। जो भी फाइंड करना है, मान लो 2 नंबर की इवेंट फाइंड करना तो E2/A, 3 नंबर की फाइंड करना तो E3/A, 3 से ज्यादा मिलेगी नहीं आपको, ज्यादा ज्यादा 4 मान लो अब किसी वर्स्ट केस के अंदर, तो E4/A, E3/A, E2/A, और A कॉमन इवेंट है। कॉमन इवेंट क्या है, A जो हो चुकी है, और ऊपर क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से E1 E2 E3। तो इसमें से किसी भी इवेंट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, जबकि कॉमन इवेंट A हो चुकी है। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने ये दिया था PA/EI इंटू PEI होल अपॉन सिग्मा के साथ में सेम टर्म है जो न्यूमरेटर में लिखी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इनको कट कर देंगे हम, नहीं, ये समेशन का मतलब प्लस है, ऐसा कट मत कर देना कि सर ये दोनों टर्म कट जाएगी तो 1 अपॉन समेशन बच जाएगा, ऐसे में एस मत लगा देना ना कि दोनों टर्म तो एक जैसी, सर बचपन से टीचर ने पढ़ाया था ऊपर नीचे एक जैसी टर्म दिखती तो कट कर दो। सिग्मा का मतलब है प्लस, मतलब ये हुआ अगर मान लो आपको A/E2 फाइंड करना है तो यहाँ E2 आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में इसका मतलब है PA/E1 PE1 प्लस PA/E2 PE2, दो इवेंट्स हैं E1 E2, 2 इवेंट्स, बस यही है मान लो उसके अंदर दो इवेंट्स ही हैं, तो PE1 E2 आएगा और इधर आ जाएगा PE2/A। एग्जाम्पल लिखा है कि EI का मतलब अगर मैं E2 ले लेता हूं, ओनली 2 इवेंट्स है वहां पर, उस क्वेश्चन में ओनली 2 इवेंट्स ही है, मान लो 3 नहीं है 4 नहीं है 2 ही है, तो दोनों ही नीचे आएंगे, E1 और E2 दोनों आएंगे। देखो बीच में प्लस लगा तो ये टर्म कट नहीं सकती ना, एग्जाम्पल से समझाया कि अपन इसका यूज कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, ये बायस थ्योरम का स्टेटमेंट है, और बायस थ्योरम के अंदर ये वो जो टर्म होती है ना इसी को हम बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। ये कैसे यूज होता है, वो बॉल निकालने वाले जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर अभी अपन ने करे थे मॉर्निंग में या थ्योरी पढ़ाते समय समझाए थे मैंने, ये वही चीज है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। नो, बायस थ्योरम टाइम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। एक्सरसाइज आपकी तो किसके ऊपर है, 13.3 बायस थ्योरम पर है।
टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी तो एनसीईआरटी की बुक में हेडिंग दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बायस थ्योरम भी लिख रखा है। देखो बायस थ्योरम के अंदर जरूरत किसकी पड़ेगी, टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी की। वो थ्योरी उन्होंने अलग से एक्सप्लेन कर रखी है, वो सिर्फ सेट नोटेशन का यूज करके की हुई, तो वो मैंने नहीं बताना आपको। इतना सब सेट नोटेशन का यूज करके उसका प्रूफ दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ आपको, कि एक की हेल्प से दूसरी इवेंट का होना, वही जो बताया था ना आपको कि रेड बॉल आना, उसके बाद ब्लैक बॉल आ चुकी है, उसके बाद रेड बॉल का आना, या ब्लैक बॉल का आना उसके बाद रेड बॉल का। मॉर्निंग में सम किया था हमने कि फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फर्स्ट, पहले ब्लैक आई फिर उसके बाद रेड आई या फिर उसके बाद ब्लैक आई। इसी चीज को टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ऐसा। अभी मैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके ही बायस थ्योरम बनी है, तो अपने आप वो क्वेश्चन इसके अंदर यूज हो जाती है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर लिखेंगे बायस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3। A bag contain 4 red and 4 black balls। 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है एक बैग के अंदर। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6, देखो ये आ गया ना, अनदर बैग 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इन दोनों बैग में से, ये फर्स्ट बैग है ये सेकंड बैग है, इन दोनों बैग में से एक बैग को हमने सिलेक्ट किया पहले, ठीक है, एट रैंडम। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड कलर की बॉल आई। इसमें से एक बैग को सिलेक्ट कर लिया पहले, फिर उसके अंदर से हमने बॉल निकाली और वो रेड हमें मालूम है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की वो जो रेड बॉल आई है वो बैग 1 में से आई हो। देखो क्वेश्चन में कितनी चीजें, एकदम ऐसा लगता है सर बहुत ही कॉमन चीजें लग रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे सोच के भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल केम फ्रॉम द बैग फर्स्ट। अगर बैग फर्स्ट में से आई होगी तो सेकंड में से आ सकती है क्या, पहले तो ये बताओ। अगर वो बॉल बैग फर्स्ट में से आई हुई होगी तो वो सेकंड में तो नहीं हो सकती ना, और अगर सेकंड में से आई होगी तो फर्स्ट में नहीं हो सकती। मतलब जो जो बॉल बैग ए में है, बैग 1 में है, वो बैग 2 में नहीं है। कलर तो सेम है लेकिन बॉल अलग अलग है ना, बैग 1 में और बैग 2 में। सो E1 और E2 इवेंट्स क्या लेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ बैग 1 एंड सिलेक्शन ऑफ बैग 2 हमारी E1 E2 होगी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जो चीज फाइंड करनी है उसको हम E1 और E2 लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा म्यूचुअल एक्विस इवेंट्स क्या है। और रेड बॉल आना है, ये कॉमन है दोनों में, दोनों में रेड बॉल है। देखो इसमें भी रेड बॉल है कॉमन, इसमें भी रेड बॉल है, तो ये कॉमन इवेंट है। दिस इज ए, रेड बॉल का आना ए हो जाएगा, E1 और E2 हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ बैग 1 एंड बैग 2। तो अब E1 और E2 इवेंट्स कैसे लेते हैं, देखो ये म्यूचुअल एक्विस इवेंट्स है ना, इसमें किसी में कुछ कॉमन नहीं है। तो E1 क्या लूंगा मैं, सिलेक्शन ऑफ बैग 1। और हमेशा ध्यान रखना ये म्यूचुअल एक्विस इवेंट्स है ना, तो इनका सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PE1 1/2। दो बैग में से एक बैग का सिलेक्शन ना, इसलिए E2 सिलेक्शन ऑफ बैग 2, दो बैग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ये हमेशा ध्यान रखना, PE1 प्लस PE2 जितनी भी इवेंट्स है, PE3 जो भी है, वो सम 1 आना जरूरी है इसका। और A इक्वल टू क्या लेंगे, कॉमन इवेंट है, जो कॉमन है दोनों में क्या कॉमन चाहिए आपको, रेड बॉल का आना है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। टू फाइंड इसके बाद इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इधर लिख रहा हूं, टू फाइंड PE1/A। P1/A का मतलब, A का मतलब क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ball is drawn from the bag 1 when it is known that it is of red color. इसको ऐसे लिखते हैं, probability of getting ball from bag 1 when it is known that red ball is drawn. जबकि रेड बॉल आ चुकी है, इट इज फाउंड टू बी रेड लिख रखा है ना, इट इज रैंडम एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 इज फाउंड टू बी रेड, ये दे रखा है ना, रेड आ चुकी है, मालूम है ये। पी ए बाई E1 फाइंड करते हैं पहले हम। देखो पी ए बाई E1 क्या लिखेंगे, कोई स्टेटमेंट लिख के बता सकता है कि स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में भी वर्ड्स में कि सर इसका मीनिंग ये लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एनीवन प्लीज ट्राई, लेट मी सी हाउ मेनी कैन राइट आउट, स्पीक कर, यू कैन स्पीक ना, मैं हटा देता हूं। कोई बोल सकता है क्या इसको सर ऐसा लिखो, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना E1 बाई ए, पी ए बाई E1 लिखेंगे। मैं इतनी स्टार्ट कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन दोनों को मिला के पढ़ना है, ए और E1 को मिला के पढ़ना है। चलो इतनी हिंट और दे देता हूं, Drawing a red ball from bag. हाँ probability drawn from the first bag। लेकिन अपन को देखो ए बाई E1 लिखा है ना अंकित, तो हमको ये वर्ड स्टेटमेंट वेयर इट इज नोन दैट, ये भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो हो चुकी है ये बताना होता है, जरूरी है। ऐसे सिंपल लिखेंगे ना तो इसका मीनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एग्जिबिट नहीं करता वो स्टेटमेंट, आपका थोड़ा बहुत एग्जिबिट कर रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं कर रहा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल when it is known that bag 1 is selected, ये लिखेंगे ना ए बाई 1, सिलेक्टेड, सिलेक्शन ऑफ बैग 1 आ गया पूरा, देखो सिलेक्शन ऑफ बैग 1 और ये भी आ गया गेटिंग ए रेड बॉल, दोनों को मिलाकर ये स्टेटमेंट बनेगा। और इसका मतलब क्या होगा, रेड बॉल फर्स्ट बैग में से आना, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी है 8, तो आंसर लिखेंगे 4/8, ये तो डायरेक्ट हो गया 4/8। अब ऐसे p बाई A2 भी लिखना है। देखो ये स्टेप्स अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो प्लीज आपको बता देते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। अब सिमिलरली इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, बैग सेकंड इज सिलेक्टेड, ऐसा हो जाएगा ना बस। तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है 2 और टोटल कितना है 8, इसमें लिख देंगे हम 2/8। पुट इन फॉर्मूला PE1 बाई ए फाइंड करना था, PE1 बाई ए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे PE1 बाई ए, PA बाई E1, PA बाई E1, PE1, PA बाई E1, PE1 प्लस PA बाई E2, PE2, वैल्यूज पुट करूं, वैल्यूज पुट करूं, PA बाई E1 कितना है, देखो PA बाई E1 4/8। जनरली इसके डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए हम इसको कैंसिल नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसा कैसा रहने तो जल्दी इजी सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर इजी होता है ना। PE1 कितना है 1/2, डिनोमिनेटर में 4/8 इंटू 1/2 प्लस कितना आएगा 2/8 इंटू 1/2, तो देखो 16 तो सब जगह से कट जाएगा, 4/6, 4/6 आ जाएगा टोटल, 1/2 सब 1/8 मतलब 16 सबके डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, न्यूमरेटर में 4/6 हो जाएगा, ऊपर ऊपर 4 डिनोमिनेटर में 6, 4/6, ठीक है 4/6 इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो गया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्वेश्चन क्या है मैंने बायस थ्योरम का, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टेप्स देखना जरूरी है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट, और मेरा सजेशन है कि आप नोट कर लो थोड़ा सा, नहीं तो बाद में आप ये नोट्स करने वाले नहीं है, नोट तो फिर दिक्कत आएगी। अभी भी आपके पास 2 महीने बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess the answer. Let 3 by 4 is the probability that he knows the answer and 1 by 4 is the probability that he guesses the answer. Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 4, what is the probability that the student knows the answer given that this answer is correctly? He answered it correctly. पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ के इच्छा नहीं मेरी, छोड़ दो सब। ऐसा स्टूडेंट को फील आता है क्वेश्चन को पढ़कर, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना तो स्टेप समझ में आएगी और आप लिख पाओगे। देखो सबसे पहली चीज तो E1 E2 क्या है, लास्ट वाली स्टेप को देखकर ही मैंने आपसे बताया था कि अभी आप सोच सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। आंसर इज करेक्टली गिवन दैट रखा है वो तो ए हो जाएगा, गिवन दैट। What is the probability that the student knows the answer? Student knows the answer. E1. Event that student knows the answer. Student answer. Student knows the answer. E1. E2 क्या हो जाएगा? Event that student क्या दिया हुआ है, एक तो knows है और एक और क्या दे रखा है, guess। हाँ, guess is the answer। गेस करके आंसर लिखा है उसने या उसको आंसर मालूम था, दो ही कंडीशन है। कॉपिंग वाला भी हो सकता है, ऐसे 3 केसेस भी बना सकते हैं, कॉपिंग वाला भी। E1 E2 और ए क्या है, इवेंट दैट स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली। स्टूडेंट आंसर करेक्टली। देखो E1 E2 और ए जब तक आप सही लिखोगे क्वेश्चन पूरा गलत है। और E1 E2 का मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वहां से आपको उसका नेगेशन में जो आ जाएगा वो E1 E2 हो जाएगा। आपको E1 फाइंड करना है, E1 अपॉन ए फाइंड करना है, टू फाइंड E1 अपॉन ए, टू फाइंड P E1 अपॉन ए। क्या लिखेंगे इसका मीनिंग, दोनों को मिला के लिखना, ऊपर ये है नीचे ये, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट knows the answer when it is known that he answered correctly। ये तो फाइंड करना है आपको, इसको वर्ड्स में ऐसे लिख देंगे। नाउ P A by E1। नाउ कैन एनीवन ट्राई टू राइट द स्टेप्स? स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। P A by E1, अभी P E1 और P E2 का आंसर भी लिखना है आपने। अभी अपने E1 E2 इवेंट्स लिखी है, तो P E1 कितना है वो लिख देता हूं मैं, P E1 P E2, बताओ क्या आएगा P E1 E2। इवेंट दैट स्टूडेंट नोज द आंसर दे रखा है क्वेश्चन में। Let 3 by 4 is the probability that he knows the answer, 3 by 4, and 1 by 4 the probability that he guesses the answer। दोनों का सम 1 आ रहा है, देखो P1 plus PE2 1 आना चाहिए, 3 by 4 plus 1 by 4 equal to 1 आ रहा है। What is the probability that the student knows the answer? बाकी तो सब आगे जो given है। PA by E1, हाँ यस, ये बताएगा कोई क्या स्टेप लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी
ए पहले आएगा ना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स नोज द आंसर, ठीक है, ए बाई वन, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट आंसर करेक्टली, पहले ही आएगा ना आंसर करेक्टली, और ये इसके पहले आएगी, स्टूडेंट आंसर करेक्टली when it is known that, ये स्टेप आपको अपनी मर्जी से लगानी पड़ती है, when student knows that when it is known that student knows the answer, क्या मुझे कोई स्टूडेंट इसका आंसर देगा, कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी, कैन एनीवन गिव मी द आंसर, स्टेटमेंट को पढ़कर, अंकित सलूजा वेरी गुड, क्यों वो ऐसा लिख रहे हैं, अपन सोच सकते हैं कि देखो स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया, उसको मालूम था, अरे इसको आंसर मालूम था तो आंसर करेक्ट ही तो देगा ना, मालूम होने के बाद भी आंसर रॉन्ग देता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना, सर मेरी तो आदत है मैं रॉन्ग आंसर भी लिख के आ जाता हूँ, आ जाती हूँ, ऐसा नहीं, मुझे तो आता था लेकिन फिर गलत लिख दिया, वो बहुत कम केसेस में होता है, वो सिली मिस्टेक होती है और बोलते हैं हम लोग ऐसा कि मुझे तो आता था मैंने गलत लिख दिया, ऐसा होता नहीं, लेकिन नहीं आता था इसलिए गलत लिखा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है, आपको आता है और आप करेक्ट आंसर लिखोगे, और PA/2 probability that student knows the answer, probability that student answer correctly when it is known that student, क्या लिखेंगे, guesses the answer, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, देखो 1/4, क्योंकि इसका हम थोड़ी पता लगा सकते हैं कि उसने गेस करके आंसर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, वो क्वेश्चन में दे रखी है, देखो 1/4, बस P1 मिल गया, P2 मिल गया, PA/2 मिल गया, इसके बाद तो हमको क्या आंसर ही मिलेगा सीधे, P1/A इक्वल टू P1/A इक्वल टू PA/1, कितना है PA/1, 1 इंटू 3/4, 1 इंटू 3/4 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 1/4, this is 3/4, 16 is LCM, 3 plus 1, right, 12 plus 1, 4 3 is 4, 4 is 4, 12, 16 plus 12 plus 1, so 3/4 into 16/13, 12/13 आंसर आ रहा है क्या इसका, फिर चेक करेंगे, 12/13, क्वेश्चन नंबर 4, 12/13 is the correct answer. स्टेप्स देख रहे हैं प्लीज आप, स्टेप्स, हाँ सर स्टेप देख रहे हैं ना, हाँ ये डांस के स्टेप भी है, मैथ्स के क्वेश्चंस के स्टेप्स हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको 6 नंबर कैसे मिलेंगे एग्जाम में, इसके किसी चीज के, ये आप कल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, परसों कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आज दे रहे हैं वहां पर अगर कोई आता है तो वहां ये कर देना डायरेक्ट शॉर्ट में फटाफट, और सीबीएसई में तो ये सब लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लर आ रहा है, मार्च तक आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, 28 मार्च नहीं, सॉरी फरवरी, मार्च नहीं फरवरी, 28 फरवरी ना, मार्च बोल दिया मैंने, 2-3 दिन और है, मतलब 28 फेब, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल से स्टार्ट की थी हमने क्लासेस, क्योंकि बीच बीच में हाफ ईयरली एग्जाम के समय छुट्टी रखी है, फर्स्ट टर्म के समय छुट्टी रखी है, PT1 में ये आ रहा है, वो आ रहा है, दिवाली ये वो, वेकेशंस, मीटिंग, स्कूल की खूब छुट्टियां स्कूल की होती रही हैं, और कोविड के कारण ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो 4-4 दिन क्लासेस लगी कई बार, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने जितना भी पढ़ा है आई एम सेटिस्फाइड, मैंने तो सब पढ़ा है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ पब्लिक पर,
तो आप देख सकते हैं वहां पर एक बार और पुरानी सब चीजें, जैसे ऐसा आपका रिक्वायरमेंट को मार्च के मंथ में। ओके, हेलो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है 6th वाला। अब मैं स्टेप में लिखूंगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स में लिखूंगा, बाकी आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। देयर आर 3 पॉइंट्स, वन इज टू हेडेड पॉइंट्स हैविंग हेड टेल on both side, दोनों साइड में हेड है। अनदर इज द बाइल्स पॉइंट दैट कम्स अप विद 75, इस तरह से बना रखा है कि ज्यादातर उसमें क्या आता है, 75% हेड आता है, 25% टेल आता है। एंड देयर आर 3 एंड वन ऑफ द 3 कॉइंस एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड पॉइंट, मतलब थर्ड में दोनों के चांस बराबर है, 50-50% हेड और टेल आने के। One of the 3 coin is chosen at random and tossed, उसमें से एक कॉइन चूज किया और उसको टॉस किया। It shows head, उसका हेड आया। What is the probability that it was two headed coin? देखो मुझे स्टूडेंट्स आप प्लीज ये बताओ, E1 E2 E3 क्या लेंगे? 3 है ना? What is the probability that it was two headed coin? तो two headed coin जो है वही हमें बता रहा है कि इसके साथ में जो इसके नेगेशन में है वही E1 E2 E3 मिल जाएगा। अगर इसको मैं E2 लेता हूं तो E1 और E3 क्या मिलेंगे, या इसको E1 लेता हूं तो E2 E3 क्या मिलेंगे, ये सोचना है आपको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन? तो टू हेडेड कॉइन वाला कौन सा है, सेकंड केस है हमारा, मतलब इसको E2 ले लेते हैं, E1 को क्या ले लेते हैं हम, नहीं E1 ही है ये। व्हाट वन वन इज ए टू हेडेड कॉइन, मतलब ये E1 हो गया। तो E2 क्या हो जाएगा, बायस्ड कॉइन जिसके अंदर कुछ बेईमानी कर रखी है। और थर्ड वन इज अनबायस्ड, मतलब E1 E2 E3 हमारे ये पॉइंट्स हैं। E1 टू हेडेड कॉइन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इवेंट देखो नहीं लिख रहा हूं। E2 E2 क्या है, बायस्ड पॉइंट। एंड E3 क्या है, E3 क्या है, अनबायस्ड पॉइंट। अब PE1, 3 कॉइन में से कोई भी एक कॉइन ले सकता हूं, 1/3। PE2 1/3, PE3 1/3। मेरे पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन में से कोई सा भी कॉइन उठा सकता हूं ना मैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/3 1/3 1/3 तीनों का सम 1 है। ए क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन व्हेन इट शोज हेड? ए लेते हैं, शोज इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, हेड आता है। टू फाइंड PE1 by A, अभी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, यू हैव टू राइट PA by E1, अब मैं पढ़ रहा हूं लिखूंगा नहीं। PA by E1 क्या लिखूंगा मैं, probability of showing the head, probability of showing the head when it is known that it is a two headed coin 1। अब स्टेटमेंट लिखोगे तो समझ में आएगा आपको, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। अरे दोनों हेड और हेड आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% की हुई ना, 1 आएगी मैक्सिमम। PA by 2, so PA by 2 को क्या बोलते हैं, probability that point shows head when it is known that it is a biased point, 75% हेड आता है इसमें, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे, 70/100 3/4। और थर्ड केस में ऐसा बोल रखा है, थर्ड वाला मतलब अनबायस्ड है, इसमें कितना हो जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। नाउ PE1 by 8 में हम इनका मल्टीप्लाई करते जाते हैं, PA/1 into 1/3 into 1, 1 into 1/3, ऊपर भी आएगा 1 into 1/3 प्लस 3/4 into 1/3 प्लस 1/2 into 1/3। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में। एलसीएम कितना है इसका, 12, 4 प्लस 3 प्लस कितना आएगा 2,
1/3 into 12/9. Is it correct? 4/9 is the answer. Question number 6 जरा चेक करें 4/9 एक्सरसाइज 13.3. ठीक है, क्या स्टेप्स लिखनी है? ठीक है, जो मैंने अभी पिछले 3 क्वेश्चन में लिखकर बताइए आपको, तो प्लीज आप इसमें लिखें, 2 क्वेश्चन में लिख के बताइए, सॉरी तीसरा आपके लिए मैंने छोड़ा है, पढ़ के भी बताया है मैंने कि कैसे लिखना है। टेक द स्क्रीनशॉट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 12 एंड 13। 12 यस 12 एंड 13, 12 एंड 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। ठीक है, उसको हम कल नहीं परसों करेंगे। अभी हम करते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करें। लुक हियर 7 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, an insurance company insured 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers। इसमें भी 3 इवेंट्स आ गई देखो। The probability of an accident is 0.01, 0.03, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident। ये एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था? तो देखो, अगर स्कूटर ड्राइवर होगा तो ट्रक ड्राइवर नहीं हो सकता और कार ड्राइवर नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों में से कुछ एक ही होगा। तो E1 E2 E3 क्या हो जाते हैं, अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं E1 E2 E3। E1 किसके लिए दिया है उन्होंने? E1 इज गिवन फॉर स्कूटर ड्राइवर। सब में अपने पास इसमें क्या है, E1 वाले ही केसेस फाइंड करने पड़ रहे हैं। E2 बाई भी हो सकता है, E3 बाई भी हो सकता है। अगर मान लो कार लिखते थे तो E2 लिखते हैं अपन, E2 बाई ए फाइंड करते हैं। यहाँ पे कार आ जाएगा और E3 में ट्रक आ जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इनकी? कितने हैं हमारे पास टोटल? 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, तो PE1 कितना हो जाएगा? 2000 अपॉन टोटल कितने हैं? 2 4 6 12,000 है ना टोटल। 12,000 स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12,000 का इंश्योरेंस कराया उन्होंने टोटल, उसमें से 2,000 स्कूटर वाले हैं। कार वाले 4,000 और ट्रक वाले, ट्रक 6,000 अपॉन 12,000। मैं इसको सॉल्व नहीं करना, इनको डिनोमिनेटर एक चीज रखूंगा, ट्रक ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी गिवन है, P E1 बाई A फाइंड करना है। देखो हर बार E1 बाई A फाइंड करना, मैं ऐसा कह रहा था, E2 बाई A भी हो सकता है, E3 बाई A भी हो सकता है। तो न्यूमरेटर ही चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। E2 बाई A में न्यूमरेटर में P E2 बाई A बाई इंटू P E2 आ जाएगा, PA बाई E2 इंटू P E2 आ जाएगा। अगर A बाई E1 है तो P E1 बाई A इंटू P E1 आ जाएगा। तो E1 बाई A तो उधर PA बाई E1 आता है ना, इसको हम PA बाई E1 लिखते हैं। बताओगा कोई स्टूडेंट, क्या पढ़ के बता सकते हैं? कोई कुछ बोलेगा? कोई बोल सकता है क्या PA बाई E1? एनीवन कैन ट्राई टू स्पीक? PA बाई E1 का मतलब क्या लिखेंगे? इवेंट सामने लिखी हुई है, ए कॉमा ए इवेंट नहीं लिखी, मैंने भी लिख देता हूं, ए भी लिखी ना सर आपने, ये तो लिखी नहीं। इवेंट पर्सन विद एक्सीडेंट, ये इवेंट कॉमन इवेंट है। स्कूटर से भी एक्सीडेंट हो सकता है, कॉमन चीज है, कार से भी हो सकता है, ट्रक से भी हो सकता है, किसी से भी टकरा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो PA बाई E1 क्या पढ़ेंगे हम?
PA by E1 पढ़ेंगे. Person meets with an accident when it is known that he is a scooter driver. उसकी probability क्या दे रखी है? 0.01. PA by E2 0.03. PA by E3 0.15. Steps मतलब वो लिखना है कि probability of person meets with an accident when is scooter driver, then second में car driver, third में truck driver. To find P by A, we write it PA by E1 into PE1 मतलब 0.01 into 2000 upon 12,000. 0.01 into 2000 upon 12,000 plus 0.03 into 4,000 upon 12,000. Then 0.15 into 4,000 6,000 upon 12,000. 12,000 का सब जगह से हट जाएगा. 2,000 upon 100. 2,000 upon 100. 3 upon 100. 4,000 into 3. 100.03 हटा दिया. And 15, 9,000. 90,000 upon 100. So total 2,000. इन सबका सम कितना होता है? 14,000 इन 90,000 कितना होता है? 104,000. 1 2 3 3 0 कट जाएगी. क्या 1/52 आंसर आ रहा है इसका? 1/52. Yes. Please take the screenshot. Okay, day after tomorrow doubts. All the best for your exams. जो स्टूडेंट साइंस के एग्जाम दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट. की मीटिंग